السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 179 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ الزخرف، آیت 1 سے آیت 89 تک یعنی اینڈ تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس شخص کو قرآن مجید نے مجھ سے مانگنے سے مصروف رکھا ہے، میں اسے مانگنے والوں کی دی جانے والی چیزوں میں سب سے زیادہ بہتر چیز عطا کروں گا۔ تو یعنی کوئی شخص ہے وہ اللہ سے دعائیں، التجائیں، لمبی لمبی مرادیں بھی نہیں مانگ پاتا، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے اتنی لمبی دعائیں حاجات کر سکے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی وہ تمام حاجت پوری کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ طالب علم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو آخری سانسوں تک طالب علم بنائے رکھے، دین پہ استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کے والدین سے راضی ہو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين آمين یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف ہے، اور سورہ زخرف دراصل یہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں کل 86 آیات ہیں۔ اس کی آیت نمبر 35 میں زخرف کا لفظ آیا ہے۔ زخرف کا معنی ہوتا ہے سونا، تو اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام زخرف ہے، اور یہ سورہ 59 صورتوں میں سے ایک ہے جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے۔ اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ان صورتوں میں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی کے آخر میں نازل کی گئی ہے۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید اور رسالت اور آخرت کا تذکرہ ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 1 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی۔ تو حامیم دراصل حروف مقطعات میں سے ہیں، والکتاب المبین یعنی ایسی کتاب کی قسم جو روشن ہے، واضح ہے، اور جس کے الفاظ ایک دم بالکل واضح اور نورانی ہیں، اور اس کی جو زبان ہے وہ عرب میں نازل ہوئی، عربی لینگویج میں یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور جو لوگوں کے درمیان بولی جاتی ہے، اور تمام جو جتنی بھی لینگویج ہے ان تمام زبانوں میں سب سے بہترین زبان فصیح اور بلیغ کون سی ہے؟ عربی ہے۔ اسی لیے فرمایا انا جعلناہ، یعنی بے شک ہم نے اس سے بنایا، یعنی اسے نازل فرمایا، قرآناً عربین۔ تو قرآن عربی یعنی فصیح اور واضح عربی زبان میں نازل ہوا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ حاصل کرو، تاکہ تم فہم حاصل کرو۔ آیت 4 دیکھیں، وَإِنَّهُ فِي ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اور یقیناً یہ قرآن ہمارے پاس اصل کتاب یعنی لوح محفوظ میں بہت بلند مرتبہ نہایت حکمت والا ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قرآن مجید، فی ام الکتاب یعنی اصل کتاب میں ہے، یعنی اصل کتاب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے، لدینا بامانے اندنا یعنی ہمارے پاس ہے، لعلی البتہ نہایت بلند یعنی بلند مقام اور مرتبے اور شرف اور فضل والی کتاب ہے، حکیم نہایت حکمت والی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، آیت نمبر 5 دیکھیں، فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کیا پھر ہم روک لیں گے تم سے ذکر؟ ذکر یعنی اس سے مراد قرآن ہے، تو قرآن کو اعراض کرتے ہوئے کہ اس لیے کہ تم حد سے گزر جانے والے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری ذاتیاں اور حد سے تجاوز کی وجہ سے ہم قرآن کا نازل کرنا بند کر دیں گے؟ بلکہ تمہارا حق سے منہ موڑنا، اللہ تعالیٰ کی حق کی بات پر سچ نہ ماننا اور اس سے منہ موڑ لینا، تو اس وجہ سے تو ہم قرآن نازل کرنا بند تو نہیں کر دیں گے۔
और उस बात का तकाजा तो ये करता है कि कुरान नाजिल होता ही रहे। शायद कि किसी भी वक्त तुमको हिदायत मिल जाएगी, तुम्हारे दिल में अल्लाह तबारक ताला हिदायत ही उतार दे। तो किसी के मुंह मोड़ने की वजह से, किसी के पीठ फेरने की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे कि हम इस कुरान करीम को नाजिल करना बंद नहीं कर देंगे। आयत देखिए, आयत नंबर 6 से है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, और हमने अगले लोगों में भी बहुत से नबी भेजे, यानी ऐसा नहीं तुम्हारी तरफ ये किताब जो कुरान मजीद आया है एकदम बिल्कुल यूनिक आया, नहीं। तुमसे पहले भी बहुत सी कौमें आई और उनमें भी अल्लाह तबारक ताला ने बहुत सी किताबें नाजिल फरमाई। आयत 7 देखे, जो नबी उनके पास आया उन्होंने उसे हंसी मजाक में उड़ा दिया, बस हमने उनके ज्यादा जोरावर को तो तबाह कर डाला और अगलों की हकीकत गुजर चुकी है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब भी अंबिया को भेजा, रसूल को भेजा, और फिर उनकी तरफ जब किताबें नाजिल हुई तो लोगों का और कौमों का यही रवैया रहा कि उनकी तरफ जो भी रसूल आता था, नबी आता था, उन्होंने अपने ही रसूल और अपने ही नबी का हमेशा हंसी मजाक उड़ाया। यानी बात इनकार करने का उनका ये तरीका था, हक की बात को जुटलाने का ये अंदाज था कि हंसी में बात उड़ा दी, है ना। जब भी कोई किसी को इनकार करना चाहता है तो हंसी मजाक में बात उड़ा देता है। ठीक उसी तरह से पिछली अकवाम थी, उन्होंने भी अपने रसूलों का बात का इनकार किया और उनकी बात, सच बात को हंसी में उड़ा दिया। तो बस अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे हैं कि बस उनके ऊपर क्या हुआ, उनके ऊपर अल्लाह तबारक ताला का अजाब आ ही गया। और फिर क्यों? क्योंकि वो हद से गुजर जाने वाली कौम थी। तो आयत नंबर 1 से 8 तक की कुरान की नूरानियत और अजमत का तबसरा है। आयत देखिए, आयत नंबर है 9। आयत नंबर 9 से 14 खालिक हकीकी अल्लाह ताला ही है। आयत 9 देखें, अगर तू उनसे पूछे कि आसमान और जमीन को किसने पैदा किया है तो यकीनन इनका यही जवाब होगा कि इन्हें गालिब और दाना अल्लाह तबारक ताला ने पैदा किया है। वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और बिछौना बनाया है और उसमें तुम्हारे लिए ये रास्ते कर दिए ताकि तुम राह पा लिया करो। उसी ने आसमान में एक अंदाजे के मुताबिक पानी नाजिल किया है, उसने मुर्दा शहर को जिंदा किया, इसी तरह तुम निकाले जाओगे। क्योंकि अक्सरियत का क्या इनकार का वजह थी, वो आखिरत का इनकार करते थे, कहते थे कि हम मर गए, गल गए, सड़ गए और हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। लेकिन अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे, जैसे अल्लाह तबारक ताला ने आसमान से नाजिल किया, बारिश नाजिल फरमाई और मुर्दा जमीन को जिंदा किया, इसी तरह तुम भी निकाल लिए जाओगे। आयत 12 देखे, जिसने तमाम चीजों के जोड़े बनाए और तुम्हारे लिए कश्तियां बनाई और तुम्हारी सवारी के लिए चौपाई जानवर पैदा किए ताकि तुम उनकी पीठ पर जमकर सवार हुआ करो। फिर अपने रब ताला की नियामतों को याद करो, जब ठीक ठाक बैठ जाओ और कहो, पाक है जात उस अल्लाह की जिसने इसे हमारे बस में कर दिया, बावजूद ये कि हम इसमें काबू पाने की ताकत नहीं रखते थे, और बिल यकीन हम अपने रब ताला की तरफ लौटकर जाने वाले हैं। तो यहाँ पर सवारी पर सवार होने का एक अल्लाह तबारक ताला ने बताया है तरीका, और दुआ बताई है कि जब हम सवारी पर सवार हों तो हम किस तरह बैठे और क्या हमें करनी चाहिए। तो इंसान जब भी ना घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट या कश्तियों पर सवार होता है और फिर क्या है, वो जम कर बैठ जाता है। और कितनी बड़ी अल्लाह तबारक ताला की नियामत है। अब जैसे मसलन हम सब हैं, रिक्शे, ट्रेन, बस और बाइसिकल और किसी भी 2 व्हीलर या 3 व्हीलर या 4 व्हीलर पर जब भी हम बैठ जाते हैं बतौर आदतन, हम तो कभी अल्लाह तबारक ताला का शुक्र ही नहीं अदा करते ना, और हम समझते हैं बस हमें बस ऐसे ही मिल गया, बस यूं ही मिल गया है। लेकिन क्या है, जो बंदा मोमिन होता है वो इन तमाम चीजों पर बैठ करके अल्लाह का शुक्र अदा करता है। आप देखिए कि एक स्क्रू अगर ढीला हो जाए, एक पुर्जा ही कोई निकल जाए, या फिर अगर कोई एक छोटी मोटी ही खराबी आ जाए तो फिर क्या कोई उस पे सवारियों पे बैठ सकता है? या मसलन ये घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट वगैरह, इनका हल्का सा दिमाग ही सनक जाए या कोई चींटी ही इनको काट ले, और जब इनके ऊपर सवारी कोई बैठा हुआ है तो वो अपनी सवारियों को उठा के पटक देंगी ना, और हो सकता है कि जो भी इसका दुर्दशा करे। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने इनको मुसख्खर कर दिया हमारे लिए, चाहे वो घोड़े, गधे, खच्चर, गाय हों या हमारे आस पास जिस पे हम सवार होते हैं, ये तमाम चीजें हैं। तो अल्लाह तबारक ताला ने हमारे लिए इनको मुसख्खर कर दिया। ये अल्लाह तबारक ताला की बहुत बड़ी नियामत है। और अब देखिए कि
इंसान इतने आसानी से इन जानवरों पर बैठता है, सवार हो जाता है, अल्लाह की नेमत का शुक्र नहीं अदा करता। आप देखिए जरा किसी इंसान ना किसी शेर, चीते या किसी और जंगली जानवर पर इस तरह जमकर बैठे, फिर उसे अल्लाह ताला की उस नेमत की कदर हो जाएगी। क्योंकि कभी भी शेर, चीता, भालू वगैरह ना अपने ऊपर सवार ही नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उन्हें हमारे लिए मुसख्खर नहीं किया। अल्लाह ताला ने हमें हमारे लिए किनको मुसख्खर किया है? घोड़े, खते, खच्चर, ऊँट, है ना, ये सब चीजें अल्लाह ने हमारे लिए मुसख्खर की हैं, हम इस पे सवार हो सकते हैं। और फिर इसी तरह से यही हाल समंदर में पहाड़ों जैसी मौजों वाली जो समुद्री जहाज होते हैं, उस पे जब इंसान पुरसुकून इत्मीनान के साथ सवारी करता है, इसीलिए अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि उसने कश्तियों और चौपायों में से तुम्हारे लिए सवारियां बनाई ताकि तुम उनकी पुश्तों पर जम कर बैठ जाओ, और जब उन पर जम कर बैठ जाओ तो अपने रब की तस्बीह करो, पाकीज़गी बयान करो। अली बिन राबिया रज़ी ताला फरमाते हैं कि हजरत अली रज़ी ताला अन्हु जब अपनी सवारी पर सवार होने लगे तो रकाब में पैर रखते ही फरमाया बिस्मिल्लाह। जम कर बैठ गए तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि सुब्हान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। फिर 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा और 3 मरतबा अल्लाहू अकबर कहा। फिर फरमाया सुब्हानका ला इलाहा इल्ला अंता कद तलमतु नफ्सी फगफिरली। फिर हंस दिए। मैंने पूछा अमीरुल मोमिनीन आप हंसे क्यों? फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल किया था। आपने जवाब दिया कि जब बंदे के मुंह से अल्लाह ताला सुनते हैं कि वो कहता है रब बिगफिरली, मेरे अल्लाह ताला मुझे आप बख्श दीजिए, तो अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं और फरमाते हैं कि मेरा बंदा जानता है कि मेरे सिवा कोई गुनाह को बख्श नहीं सकता है। तो जब अल्लाह हंसते हैं तो फिर अल्लाह ताला खुश होते हैं। तो फिर इसीलिए आप सल्लम का मामूल था कि जब वो दुआ पढ़ते थे ये तो आप सल्लम मुस्कुराते थे। और सहाबा इतने ज्यादा आप सल्लम की इत्तिबा करने वाले कि पूरा एज इट इज एज वैसे ही वो अमल करते थे जैसा रसूल अल्लाह सल्लम करते थे। और अगर रसूल अल्लाह सल्लम दुआ पढ़ने के बाद मुस्कुराते थे तो सहाबा भी मुस्कुरा दिए थे। ठीक है। हजरत अली का क्या मामूल था कि वो भी मुस्कुरा दिए। तो उनसे पूछा कि क्यों मुस्कुराया, कि उन्होंने बताया कि आप सल्लम भी इसी तरह से मुस्कुराते थे। एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल एज इट इज एज वैसे ही वो अमल करते थे जैसे आप सल्लम अमल करते थे। ये अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 2602। तो जब भी सवारी पे सवार हो इस तरह से सवार हो, ये दुआएं पढ़ें, ये अस्कार पढ़ें। क्योंकि ना आप देखिए कि सवारी पे तो हम सवार हो जाते हैं बेधड़क, और कभी भी हम दुआओं का अक्सर, जो हम सबको तो नहीं लेकिन हाँ कुछ हमारे मुसलमान हैं कि वो कभी भी दुआएं नहीं पढ़ते हैं और जो है इस तरह से अस्कार नहीं पढ़ते हैं। लेकिन क्या है, इस तरह से दुआएं वगैरह पढ़ें, चाहे आप किसी भी सवारी पे सवार हो रहे हैं, बाइसिकल, साइकिल, ऑटो रिक्शा, बस, ट्रेन, जहाज, किसी पर भी आप जब भी बैठे तो ये दुआएं जरूर पढ़ें। आयत देखिए, आयत नंबर है 15। इन्होंने अल्लाह तबारक ताला के कुछ गुलामों को उसका साझेदार ठहरा दिया, यकीनन इंसान खुल्लम खुल्ला नाशुक्र है। दरअसल अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़अ इन्नल इंसाना लकफूरुम मुबीन। और उन्होंने उसके लिए उसके बाज बंदों को जुज बना डाला, यानी जो अल्लाह तबारक ताला की तरफ मंसूब कर दिया बंदों को ही। बेशक इंसान यकीनन सरी ही नाशुक्र है। तो मुशरिकीन मक्का के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अल्लाह के बंदों में से बाज को यानी फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहा। और इससे बढ़कर झूठ और कुफ्र क्या हो सकता है? उन्हें कैसे मालूम कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं और अल्लाह के साथ वो इबादत के मुस्तहक हैं? हकीकत दरअसल ये है कि इससे बढ़कर कुफरान नियामत और क्या हो सकती है कि एक तरफ तो एतराफ करते हैं कि वही जात और वाहिद और खालिक और जमीन और आसमान की वही अल्लाह तबारक ताला खालिक और मालिक है, उसका कोई साथी नहीं, उसका कोई सानी नहीं। फिर उसी के लिए उसकी जो औलाद है वो साबित करते हैं और कहते हैं कि जो फरिश्ते हैं अल्लाह ताला की बेटियां हैं। तो ये बहुत ही जो है जुल्म है और कुफरान नियामत है। आयत देखिए, आयत नंबर 16 है। क्या अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में से बेटियां तो खुद रख ली हैं और तुम्हें बेटों से नवाज दिया है? आयत 17 देखे, उनमें से किसी को जब उस चीज की खबर दी जाए जिसकी मिसाल उसने अल्लाह रहमान के लिए बयान की है तो उसका चेहरा सियाह पड़ जाता है और गमगीन हो जाता है। अल्लाह ताला की शान बेनियाजी के खिलाफ उनकी जुरात तो देखें कि उन्होंने अल्लाह तबारक ताला की औलाद भी ठहराई, तो ऐसी जिसे वो अपने लिए खुद भी पसंद नहीं करते थे, यानी बेटियां।
جن سے وہ انتہا کی نفرت کرتے تھے۔ ان کی نفرت کا حال یہ تھا کہ جب انہیں خبر دی جاتی تھی کہ ان کے یہاں بیٹیاں ہوئی ہیں، بیٹی ہوئی ہے، تو بہت زیادہ غم اور ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، سیاہ پڑ جاتا تھا ہمارے غصے اور غم کے، اور ان کے دل میں بہت زیادہ غم بھر جاتا تھا۔ اور اکثر کا تو یہ حال تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو وہ زندہ دفنا دیتے تھے۔ اسما بنت ابو بکر رضی تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے قریش کی جماعت، اللہ کی قسم میرے علاوہ تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیم پر نہیں۔ زید بن عمرو لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا کرتے تھے۔ جب کوئی شخص اپنی بیٹی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو زید اسے کہتے تو اسے قتل نہ کر، میں اس کے تمام اخراجات یعنی سارے خرچوں کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ لڑکی کو اپنی پرورش میں رکھ لیتے تھے۔ پھر جب وہ بڑی ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری بیٹی تمہارے سپرد کر دیتا ہوں، اور اگر تمہاری مرضی ہو تو میں اس کے سب کام پورے کر دوں، یعنی شادی وغیرہ کا بھی خرچہ اٹھا دوں گا۔ تو اتنا زیادہ یہ انہوں نے نیکیاں بٹوری۔ لیکن کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ وہ تو ان کی یہاں بیٹیاں ہوتی تھی، اپنی اولاد ہی کو وہ ختم کر ڈالتے تھے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 18 ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، کیا اللہ تعالیٰ کی اولاد لڑکیاں ہیں جو زیوراتوں کی نمائش میں پلی بڑھی اور جھگڑے میں ظاہر نہیں ہو سکی؟ یعنی لڑکیوں کی پرورش اور نشو اور نما زیور اور زینت کے سامان کے تحت ہوتی ہے، اور ان کے ذریعے سے اس کی شخصیت میں جو پائی جانے والی کمی کو پورا کیا جاتا ہے۔ اور لیکن بحث و حجت اور کی ضرورت جب پیش آتی تو وہ بات میں صاف طرح سے کر بھی نہیں سکتی، یعنی کہ حجت بحث وغیرہ کرنے کی بھی عورتوں میں ہمت نہیں ہوتی، بلکہ وہ عاجزانہ تو ہوتی ہی ہیں۔ تو اس طرح کی جو ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف، جو صاحب عظمت و شان و طاقت والا ہے، اس سے اپنی طرف وہ منسوب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بیٹے ہمارے لیے ہیں، ہم بیٹوں کو پسند کرتے ہیں، اور بیٹیاں جن کو وہ پسند نہیں کرتے، جن کو وہ زندہ ہوتے قتل کر دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ نعوذ باللہ۔ تو بھلا اللہ تبارک تعالیٰ کیسے کسی کو اپنا بیٹی یا بیٹا بنا سکتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے؟ پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آیت میں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کیا جو زیورات کی نمائش میں پلی بڑھی، تو یعنی کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو بچپن ہی سے ان کے کلائیوں میں چوڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، پاؤں میں جو ہے نا پازیب ڈال دی جاتی ہے، بچیوں کے کانوں میں جو ہے بالی ڈال دی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو زیورات میں پلی بڑھی، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا، یہ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو لڑکیاں ہیں وہ بہت غیر گزری ہیں اور لڑکے بہت اچھے، لیکن ایک طرح سے یہ کفار مکہ کو انہی کی باتوں میں کیا ہے جواب دیا جا رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ لڑکیاں بہت زیادہ بیکار، خراب عورتیں، بالکل جو ہے نا کوئی ویلیو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ان کی جو یہ حرکتیں تھیں، کفار مکہ کی حرکتیں تھیں، یہ انہی کی باتوں کو انہی پہ گھمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے لیے کہتے ہو کہ یہ فلاں جو ہے بیٹے میرے لیے ہیں، اور جو کمزور ہے، جو اچھا نہیں ہے، جس کو تم پسند نہیں کرتے ہو، جس کو تمہارے لیے کیا ہے بوجھ سمجھتے ہو، پھر اس کو تم قتل کر ڈالتے ہو، اس کے لیے تم اپنی جو ہے ساری کے سارے تم جرائم کرتے ہو، تم وہ چیز تم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرتے ہو، جیسے کہ وہ جو حصے لگاتے تھے، جب ناقص چیز ہوتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف حصے میں لگا دیتے تھے، جو بہترین حصہ ہوتا تھا، یعنی کہ جب کھیت وغیرہ کا حصہ کٹ کے آتے تھے تو کھیتوں باغوں کے جو حصے ہوتے تھے تو وہ ناقص اور بیکار کی جو چیزیں ہوتی تھی اللہ والے حصے میں ڈال دیتے تھے، اور جو بہترین اور بڑھیا اور زیادہ حصہ وہ اپنے معبودوں کی طرف جو ہے ملا دیتے تھے۔ تو وہی حال ان کا ادھر بھی ہے کہ بیٹے کیا ہے، اچھے بڑھیا ہے تو وہ اپنی طرف انہوں نے کیے کہ ہاں ہمارے بیٹے، ہمارے یہ میرا جو بڑھاپے کا سہارا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اپنی شان مان تان سمجھتے تھے۔ لیکن بیٹیاں چونکہ ان کے لیے بہت بوجھ تھیں، بہت برا سمجھتے تھے، چہرے ان کے سیاہ ہو جاتے تھے، پیدا ہوتے وہ مار دیتے تھے۔ اور تو پھر انہوں نے فرشتوں کو کہا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ فیمیل سے ہیں اور یہ اللہ کی بیٹی ہیں، اس طرح سے انہوں نے اس طرح سے بات کو منسوب کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو واحد ہے، لا شریک ہے، نہ اس کا کوئی بھی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی بھی بیٹی ہے۔ وہ تو کیا ہے، سبحانہ، وہ تو پاک ہے، ہر
उस कमजोरी से जिसका ये लोग बताते हैं। आयत देखिए, आयत नंबर 19 है। और उन्होंने फरिश्तों को वो जो रहमान के बंदे हैं औरतें बना दिए, क्या वो उनकी पैदाइश के वक्त हाजिर थे? उनकी गवाही जरूर लिखी जाएगी और वो पूछे जाएंगे। यानी जो फरिश्ते रात दिन अपने खालिक और मालिक की तस्बीह और तकदीस में लगे रहते हैं, तो उन्होंने कुफार मक्का ने कहा कि फरिश्ते जो है अल्लाह की बेटी हैं। दरअसल कुफार मक्का ने जहालत और नादानी की वजह से उन फरिश्तों को औरतें बना दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे, क्या जब अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा किया तो उस वक्त वो कुफार मक्का वहां मौजूद थे और उन्हें इस बात का इल्म हो गया था क्या कि वो अल्लाह ताला ने उनको मुअन्नस पैदा किया, यानी फीमेल्स पैदा किया है? हकीकत तो ये है कि अल्लाह ताला की कुदरत और मंजिलत के खिलाफ ये बड़ी ही जालिमाना जुरात करते हैं, जिसके बारे में क़यामत के दिन उनसे जरूर सवाल किया जाएगा कि अपने दावे की सदाकत पर दलील और बुरहान पेश करें। लेकिन वो आजिज रहेंगे और तब भी उन्हें जिल्लत और रुसवाई का उन्हें सामना करना पड़ेगा। आयत देखिए, आयत नंबर 20 है। कहते हैं अगर अल्लाह ताला चाहता तो हम इनकी इबादत ना करते, इन्हें उसकी खबर कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ अटकल बच्चू झूठ बातें करते हैं, यानी कि अटकलें लगाते हैं। कोई पुख्ता दलील नहीं, कुछ भी ऐसी कोई किताब में लिखा नहीं, लेकिन बस क्या अपनी अटकलें लगाते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी तरदीद की कि उन्हें कैसे मालूम हो गया कि अल्लाह ताला उनके इस काम से राजी है। यानी वो ये कहते थे कि अगर अल्लाह ताला ना चाहता तो हम इनकी इबादत नहीं करते, अल्लाह ताला हमसे राजी है इसीलिए हम इबादत कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि ऐसा हमको कैसे मालूम हो गया कि उनके इस काम से अल्लाह राजी है? ये तो महज उनकी बेदलील और बेबुनियाद की बातें हैं। जबकि अल्लाह ताला ने जितने अंबिया इकराम भेजे हैं और जिस कदर किताबें नाजिल फरमाई है, और सारा का सारा सबसे अल्लाह तबारक तआला ने यही पैगाम पहुंचाया, यही बात पहुंचाई कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत की जाए, ताला के साथ किसी और को शरीक ना ठहराया जाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक का ही पैगाम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर अंबिया, हर रसूल, हर जो दीन फैलाने वाला है उसको पहुंचाया, उसके जरिए से पहुंचाया। तो सेम वही है कि बहुत सारे लोग आज भी गुमराह होते हैं और अपने गुमराहियों का जो वबाल है वो उसको कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो हम हिदायत पा जाएंगे। अल्लाह ताला ही नहीं चाह रहा जो हम हिदायत पे आए ना, हम गुमराह हैं। तो गुमराहियों का वबाल भी नाउजुबिल्लाह वो अल्लाह पे ब्लेम करते। तो आयत 21 देखे, क्या हमने उन्हें इससे पहले कोई किताब दी है जिसे ये मजबूत थामे हुए हैं? आयत 22, नहीं नहीं, बल्कि ये तो कहते हैं कि हमने तो अपने बाप दादा को एक मजहब पर पाया और हम उन्हीं के कदमों पर राह याफ्ता हैं। यानी कि हमने जो ये इत्तिबा कर रहे हैं, हम जो ये फॉलो कर रहे हैं जिस दीन को, तो दरअसल हमने अपने बाप दादा को इसी दीन पर पाया है। और दरअसल क्या है, बिल्कुल दुरुस्त और सही बात है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे, आयत देखिए, आयत नंबर 23, इसी तरह जिससे पहले भी हमने जिस बस्ती में कोई डराने वाला भेजा, वहां के आसूदा हाल लोगों ने कभी यही जवाब दिया, उन्होंने भी यही जवाब दिया कि हमने अपने बाप दादा को एक राह पर और एक दीन पर पाया है, हम तो उसी के नक्शे कदम की पैरवी करने वाले हैं। आयत नंबर 24 और 25, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगरचे मैं उससे बहुत ज्यादा मकसूद तक पहुंचाने वाला तरीका लेकर आया हूं जिस पर तुमने अपने बाप दादा को पाया, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम इसके मुनकिर हैं, जिसे देखकर तुम्हें भेजा गया है। बस हमने उनसे इंतकाम लिया और देख लो झुटलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ। आयत देखें, आयत नंबर है 26, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से और अपनी कौम से फरमाया कि मैं उन चीजों से बेजार हूं जिनकी तुम इबादत करते हो। दरअसल शिर्क का कला कुमा करना सुन्नत इब्राहिमी है। दरअसल इसमें जो आयत 26 से 35 का जो मजमून है वो इस मजमून में है कि कुफारे मक्का कहते थे कि ये हमारे बाप दादा से चला आ रहा है, मंसूब करते थे ना। और वो उनके बाप दादा किसकी तरफ कहते थे इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत रेस्पेक्ट देते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने सुन्नत इब्राहिमी सामने उनके सामने रखी। देखो जो अपने बाद आने वाले तमाम नबियों के जो बाप हैं, जो रसूल हैं, जो इमामुन नास हैं, उन्होंने खुले लफ्जों में ना सिर्फ अपनी कौम से बल्कि सगे बाप से भी कह दिया था कि मुझसे तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, मैं सिवाय अपने अल्लाह ताला के जो मेरा खालिक और मेरा हादी है, तुम्हारे इन माबूदों से मैं बेजारी करता हूँ और मैं सबसे लाताल्लुक हूँ, बेताल्लुक हूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहुत रेस्पेक्ट करते थे, बहुत मानते थे बात, लेकिन क्या है उनका जैसा जो उनका दीन था, लेकिन उनकी दीन की उन्होंने इत्तिबा नहीं की। तो अल्लाह तबारक तआला उनको याद दिला रहे हैं कि तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरोकार कहते हो, दावा करते हो, लेकिन इब्राहिम तो अलैहिस्सलाम तो क्या थे, वो तो तौहीद के अलमबरदार थे। आयत 27 देखे, सिवा उस अल्लाह ताला के जिसने मुझे पैदा किया है वही मुझे हिदायत भी
हिदायत भी करेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी को अपनी औलाद में भी बाकी रहने वाली बात पर कायम कर गए ताकि लोग बाज आते रहें। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जो औलाद है उसमें जो बाकी रहने वाली बात क्या कायम की, यानी कि जो बाकी रहने वाली बात यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, यही बाकी रहने वाली बात है। आयत 29 देखे। बल्कि मैंने उन लोगों को और अपने बाप दादा को सामान और असबाब दिए ताकि ये उनके पास हक और साफ साफ सुनाने वाला रसूल आया है। हक के पहुंचते ही ये बोल पड़े कि ये तो जादू है, हम इसके मुनकिर हैं। आयत 31 देखे। और कहने लगे ये कुरान उन दोनों बस्तियों में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नहीं नाजिल किया गया। आयत 32। क्या तेरे रब ताला की रहमत को ये तकसीम करते हैं कि हमने इनकी जिंदगानी दुनिया की रोजी इनमें तकसीम की है और एक दूसरे से बुलंद किया, और ताकि एक दूसरे को मातहत कर ले, जिसे ये लोग समेटते फिरते हैं, और उससे तेरे रब ताला की रहमत ही बेहतर है। आयत नंबर 33 देखें। अगर ये बात ना होती कि तमाम लोग एक ही गिरोह हो जाएं तो अल्लाह रहमान के साथ ये कुफ्र करने वालों के घरों की छतों को हम चांदी की बना देते और जीनों को भी जिन पर ये चढ़ा करते हैं, और उनके घरों में के दरवाजों और तख्त भी जिन पर वो तकिए लगाकर बैठते हैं, और सोने के भी। और ये सब कुछ यूं ही दुनियावी सा फायदा है, आखिरत तो तेरे रब ताला के नजदीक सिर्फ परहेजगारों के लिए है। तो अल्लाह सुब्हान तआला इरशाद फरमा रहे हैं आयत नंबर 33-34 में, और यहीं पर वो लफ्ज आया है जुखरुफ। जुखरुफ यानी सोना। व जुखरुफा व इनकुल्लु जालिका। अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे हैं कि हम उनके लिए ये जो जो सीढ़ियां हैं और सामान उनका सब कुछ सोने का बना देते, लेकिन ये जो फायदा है बस थोड़ा सा है। तो अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया है आयत नंबर 33, 34, 35 में, कि इस आयत में तबारक ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर ये बात यकीनी ना होती कि सारे लोग दरअसल क्या है, काफिर ना हो जाएं, ठीक है, दुनिया एकदम हकीर है, हकीर चीज है। तो अल्लाह ताला ताला फरमा रहे हैं अगर ये बात ना होती कि सब लोग काफिर हो जाते तो अल्लाह ताला काफिरों के घरों की छतों और सीढ़ियों को चांदी का बना देते, और उनके घरों के दरवाजे और चारपाइयां हैं, कुर्सियां हैं, उन सबको चांदी का बना दिया जाता। अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे हैं कि हम उन्हें सोने और जवाहरात के बना देते, सब कुछ सोने और जवाहरात और हीरे और पुखराज का बन जाता। चीजें और सामान और ग्लास सब सोने का चांदी का, जीनत से भी नवाजा जाता उनको, और ताकि वो कुफ्र और सरकशी में और ज्यादा बढ़ते चले जाए और शदीद तरीन अजाब के वो मुस्तहक बनेंगे। इसलिए कि दुनिया की तो दरअसल क्या है, ये नियामतें आर्जी और वक्ती हैं और टेम्परेरी हैं। अल्लाह के नजदीक इनकी कोई हैसियत नहीं है। दुनिया दरअसल क्या है, फानी है, और इसका जो सामान है वो भी क्या है, चंद रोजा और कम वक्त के लिए है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर दुनिया की हैसियत अल्लाह ताला के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर की होती तो अल्लाह ताला इसमें किसी काफिर को एक घूंट पानी भी ना पीने देते, ना पिलाता। ये तिरमिज़ी की हदीस है, ठीक है। तो अल्लाह ताला के यहाँ इस जो दुनिया है इसकी जो कीमत आप सोचे कि इस पूरी दुनिया और सिर्फ फिर एक मच्छर का पर, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ जो ये दुनिया है इसकी जो वैल्यू है एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। मच्छरों को देखते हैं लेकिन कभी किसी ने हमने मच्छर का पर देखा है? लाख कोशिश करने के बाद भी हम मच्छर का कभी पर नहीं दिख सकता है। सदी से पता चलता है कि दुनिया की कोई वैल्यू नहीं, दुनिया की कोई भी कदर नहीं है अल्लाह ताला के यहाँ। दुनिया बिल्कुल बेकार, हकीर और बिल्कुल खत्म हो जाने वाली नापायदार है, जिसका कभी भी खत्म हो जाना और मिट जाना, राख बन जाना तय है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और तुमने सोने और चांदी के बर्तनों में ना ना खाया करो और ना पिया करो, उनकी जो प्लेटों में ना खाओ, क्योंकि ना उन काफिरों के लिए दुनिया में ये खाना पीना है। ठीक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने और चांदी के बर्तनों में खाने पीने से भी मना फरमा दिया, बुखारी की हदीस है। इरशाद फरमाया और तुम सोने और चांदी के बर्तनों में ना पियो और ना प्लेटों में खाओ, ठीक है। ना बर्तनों में पीना है ना प्लेटों में खाना है, क्योंकि ना ये इन काफिरों के लिए है जो दुनिया में और हमारे लिए आखिरत में है। दुनिया में काफिरों के लिए है, काफिर दुनिया में खा लेंगे, प्लेटों में पानी पी लेंगे सोने की चांदी की, लेकिन मोमिन के लिए क्या है, ये आखिरत में है। आखिरत में जो बंदा मोमिन होगा वो सोने और चांदी के बर्तनों में खाएगा पिएगा। आयत देखिए, आयत नंबर है 36।
और जो शख्स अल्लाह ताला की याद से गफलत करे, हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते, वही उसका साथी रहता है। वो उन्हें राह से रोकते हैं और यही इसी ख्याल में रहते हैं कि ये राह याफ्ता है, यहाँ तक कि जब हमारे पास आएगा कहेगा काश मेरे और तेरे बीच मशरिक और मगरिब की दूरी होती, तू तो बड़ा बुरा साथी है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर इरशाद फरमाया है कि आयत नंबर 36 से 45 इरशाद होता है कि अल्लाह ताला के जिक्र से गफलत का नतीजा बताया जा रहा है कि जो शख्स अल्लाह ताला की रहीम और करीम जिक्र से गफलत और बेरगबती करता है, बेरगबती इख्तियार करता है, तो अल्लाह तबारक ताला उस पर क्या करते हैं, शैतान मुकर्रर कर देते हैं। तो शैतान उस पर काबू पा लेता है और उसका साथी बन जाता है। तो ऐसे गाफिल लोगों पर शैतान अपना काबू कर लेता है और उन्हें अल्लाह ताला की राह से रोकता है और उनके दिल में ख्याल जमा देता है कि उनकी रविश क्या है, बहुत अच्छी है, वो गलत फहमी में मुब्तला हो जाती है, बिल्कुल सही दीन पर वो कायम है। ठीक है, तो ये इस गलत फहमी में मुब्तला हो जाते हैं, शैतान के रास्ते पे होते हैं और वो समझते हैं ये बिल्कुल सही दीन और सही दुरुस्त दीन है। तो क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला के सामने हाजिर होगा और मामला खुल जाएगा, तो अपने उस शैतान से जो उसका साथी था बरात हाजिर जाहिर करेगा, कहेगा नहीं हम तुमसे दूर हैं और तुमसे और हमारे बीच क्या है, इख्तिलाफ है और मामला दूर करो हमसे और तुमसे तुमसे बहुत दूरी है, बहुत दूरी है। तो कहेगा काश मेरे और तेरे बीच इतना फासला होता जितना मशरिक और मगरिब के बीच का है, इतना ज्यादा फासला होता, इतनी ज्यादा दूरी होती। तो जो अल्लाह ताला की याद से मुंह फेरता है, तो अल्लाह ताला को याद जो नहीं करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला शैतान को उसके पीछे लगा देते हैं। इब्न अल क़य्यूम कहते हैं कि जब इंसान सुबह और शाम करे और उसकी परेशानी सिर्फ अल्लाह की ज़ात हो, तो अल्लाह ताला उसकी सारी ज़रूरतों को अपने ज़िम्मे कर लेते हैं और हर वो चीज़ उसे परेशान करे और उसे भी अपने ज़िम्मे कर लेता है और इसके दिल को अपनी मोहब्बत के लिए, उसकी ज़बान को अपने ज़िक्र के लिए और अपने उसके आज़ा को अपनी इताअत के लिए फ़ारिग कर देता है। और अगर वो शख्स सुबह और शाम इस हाल में करता है कि दुनिया ही बस उसकी परेशानी है, तो अल्लाह ताला उसकी परेशानी, गम और तकलीफ को उस पर लाद देता है और उसे उसके नफूस के हवाले कर देता है, उसके दिल को अपनी मोहब्बत से मखलूक की मोहब्बत की तरफ फेर देता है और उसकी जबान को अपने जिक्र से हटाकर लोगों के जिक्र की तरफ लगा देता है, उसके आज़ा को अपनी इताअत से हटाकर लोगों की खिदमत में लगा देता है। तो वो इस तरह मशक्क़त उठाता है जिस तरह जंगली जानवर दूसरे की खिदमत में मशक्क़त उठाते हैं, यानी हर हाल में उसको मशक्क़त ही मशक्क़त होती है। तो जो शख्स अल्लाह ताला की अबूदियत, उसकी इताअत, उसकी मोहब्बत, उसकी खिदमत से रूगर्दानी करता है, तो वो मखलूक की अबूदियत और खिदमत में लग जाता है। तो जो भी शख्स है अल्लाह ताला के जिक्र से जब इंसान पीछे हटेगा, गाफिल होगा, तो अल्लाह ताला उसको ये सब बतौर सजा देते हैं कि उसका साथी शैतान होता है। और अब देखिए कि इंसान अल्लाह के जिक्र से कब गाफिल होता है, जब उसके पास दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की कसरत आ जाती है। तो दुनिया की कसरत की वजह से इंसान अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल हो जाता है और तो फिर क्या होता है कि इंसान दुनिया में फंस जाता है और फरिश्ते वगैरह उनसे दूर हो जाते हैं और शैतान उसके साथी बन जाते हैं। जो अल्लाह ताला की याद से सुबह का आगाज करता है, अल्लाह उसकी सबसे अहम तरीन चीज होते हैं, फरिश्ते भी उसके मददगार होते हैं, तो उसके लिए अल्लाह ताला की मदद आ जाती है, उसके काम आसान हो जाते हैं। और इसके अपोजिट जो दुनिया ही की तरफ जाने वाला होता है, वो गाफिल होता है, तो वो बुराइयों की तरफ माइल होता है और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको अपने जिक्र से भी गाफिल कर देते हैं। तो जैसा कि कुरान ही में आता है कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तो जो अल्लाह को याद करता है अल्लाह उसको याद करते हैं, जो अल्लाह को भूल जाता है अल्लाह उसको भूल जाते हैं और फिर यहाँ तक कि उसके ऊपर बतौर सजा क्या होती है, शैतान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सबको अल्लाह तबारक ताला के जिक्र में मशगूल रखे और आखिरी सांसों तक हमारे ज़बान पर अल्लाह ताला का जिक्र तस्बीह रहे और हम दिल से भी अल्लाह को याद करें और ज़बान से भी अल्लाह को याद करें, हमारे आज़ा भी अल्लाह के इबादत में मशगूल रहें। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत देखिए, आयत नंबर है 39। जबकि तुम जालिम ठहर चुके, तो तुम्हें आज हरगिज तुम्हारा सबका अजाब में शामिल होना कोई नफा ना देगा। आयत 40 और 41। क्या बस तू बहरों को सुना सकता है या अंधे को राह दिखा सकता है जो खुली गुमराही में हो? हम अगर तुझे यहाँ से ले भी जाएं तो भी हम इनसे बदला लेने वाले हैं, या जो कुछ उनसे वादा किया है वो तुझे दिखा दे, यकीनन हम इसी पर कुदरत रखते हैं। आयत 43, 44 और 45 देखें। बस जो वही
तेरी जानिब की गई है, तू उसे मजबूत थाम रहे। यकीन मान कि तू राह रास्त पर है, और जो यकीनन ये खुद तेरे लिए और तेरी कौम के लिए नसीहत है, और अनकरीब तुम पूछे जाओगे। और हमारे उन नबियों का हाल मालूम करो जिन्हें हमने तुमसे पहले भेजा था, कि क्या हमने सिवा रहमान के और माबूद मुकर्रर किए थे जिनकी इबादत की जाए। आयत 46 से आयत नंबर 56 तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का जो है वाकये का तस्करा है। आयत देखिए, आयत नंबर 46। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने दलाइल देकर फिरौन और उसके उमरा के पास भेजा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तमाम जहानों के परवरदिगार का रसूल हूँ। जब हमारी निशानियां लेकर उनके पास आए तो वो बेसाख्ता उन पर हंसने लगे। आयत 48। हमने उन्हें जो निशानी दिखाते वो दूसरी से बड़ी चढ़ी होती थी, और हमने उन्हें अजाब से पकड़ा ताकि वो बाज आ जाए। आयत 49 और 50 देखें। वो कहने लगे, ए जादूगर, हमारे लिए अपने रब ताला से इसकी दुआ कर जिसका उसने तुझसे वादा कर रखा। यकीन मान कि हम राह पर लग जाएंगे। फिर जब हमने वो उनसे अजाब को हटा लिया, उन्होंने उसी वक्त अपना कौलो करार को तोड़ दिया। ये बात उसी की तरफ इशारा है जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की तरफ बात लेकर अल्लाह का पैगाम लेकर गए थे, तो उन्होंने जब उनके कौम ने नहीं माना, तो अल्लाह तबारक तआला ने इनके ऊपर अजाब भेजे। टिड्डी, मेंढक, खून, वो सब याद है ना आप सबको, तूफान और तमाम तरह के अजाब आए। लेकिन ये कहते थे कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, हमसे ये इस अजाब को दूर करा दिए, हम बिल्कुल ठीक आपकी बात मानेंगे और अल्लाह ताला की इताअत करेंगे। लेकिन जब उनसे अजाब दूर कर दिया जाता था तो फिर वो अपने ही रवैये पर आ जाते थे, अपने कौल और करार को तोड़ देते थे। आयत देखिए, आयत नंबर है 51। फिरौन ने अपनी कौम में मुनादी यानी ऐलान कराया और कहा कि ए मेरी कौम, क्या मिस्र का मुल्क मेरा नहीं और मेरे महलों के नीचे ये नहरें बह रही हैं? क्या तुम देखते नहीं रहे हो? आयत 52। बल्कि मैं बेहतर हूँ बानिस्बत उसके जो बेतौकीर है और साफ बोल भी नहीं सकता, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं। आयत 53। अच्छा, इस पर सोने के कंगन क्यों नहीं आ पड़े, या उसके साथ बांध कर फरिश्ते ही आ जाते। यानी कि जो ये सोने के कंगन है, तो बड़े बड़े राजा महाराजा की शान होते थे। तो फिरौन कह रहे हैं कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से ये रसूल है, तो इनके ऊपर सोने के कंगन क्यों नहीं आए, या फरिश्ते क्यों नहीं इनकी तरफ से गवाह रहे और शाहिद रहे। इसी तरह से ये फिरौन ने एतराजात किया था मूसा अलैहिस्सलाम पर, उसी की तरफ यहाँ पर इशारा है। आयत देखिए, आयत नंबर 54। इसने अपनी कौम की अक्ल खो दी और इन्होंने इसकी बात मान ली, यकीनन ये सारे ही बेहुक्म लोग थे। आयत 55 और 56 देखें। फिर जब इन्होंने हमें गुस्सा दिलाया तो हमने इनसे इंतकाम लिया और सबको डुबो दिया, बस हमने गया गुजरा कर दिया और पिछलों के लिए मिसाल बना दी। आयत 57। आयत 57 से आयत 67 तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तस्करा है। जब इब्ने मरियम की मिसाल बयान की गई तो इसे तेरी कौम पुकार उठी। आयत 58। और कहने लगे कि हमारे माबूद अच्छे हैं क्या, या वो जिससे इनका कहना सिर्फ झगड़े की गर्ज है, बल्कि ये लोग ही झगड़ालू हैं। ईसा अलैहिस्सलाम भी सिर्फ अल्लाह का बंदा ही है जिस पर हमने एहसान किया और इसे बनी इसराइल के लिए निशान कुदरत बनाया। आयत 60 देखे। अगर हम चाहते तो तुम्हारे बदले फरिश्ते कर देते जो जमीन में जानशीनी करते। आयत 61। और यकीनन ईसा अलैहिस्सलाम कयामत की अलामत यानी निशानी है, बस तुम कयामत के बारे में शक ना करो और मेरी ताबेदारी करो, यही सीधी राह है। आयत 62 देखे। शैतान तुम्हें रोक ना दे, यकीनन वो तुम्हारा सरीह दुश्मन है यानी खुला दुश्मन है। जब ईसा अलैहिस्सलाम मुअज्जे लेकर आए और कह दिया कि मैं तुम्हारे पास हिकमत लाया हूँ, और इसलिए आया हूँ कि जिन चीजों में तुम मुख्तलिफ हो, इख्तलाफ करते हो, उन्हें वाजे कर दूं, बस तुम अल्लाह ताला से डरो और मेरा कहना मानो। आयत फिर 64 देखें। मेरा और तुम्हारा रब फकत अल्लाह ताला ही है, बस तुम सब उसी की इबादत करो, यही राह रास्त है। आयत 65 देखें। फिर मैंने इसराइल की जमातों ने आपस में इख्तलाफ किया, बस जालिमों के लिए खराबी है और दुख देने वाले दिन की आफत से। आयत 68 से 78 अहले जन्नत और अहले जहन्नम का तस्करा है। आयत 66 देखें। ये लोग सिर्फ क़यामत के मुंतजिर हैं कि वो अचानक उन पर आ पड़े और उन्हें खबर भी ना हो। उस दिन गहरे दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे।
सिवाय परहेजगारों के। मेरे बंदो, आज ना तो तुम पर कोई खौफ होगा और ना हरास, और ना तुम बददिल और गमजदा होगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं आयत नंबर 67 में, उस दिन गहरे दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे सिवाय परहेजगारों के। तो दोस्त वही होता है जो हमेशा साथ देता है। अगर कोई मुश्किल के वक्त में आपका साथ नहीं देता है तो वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। लेकिन मुत्तकीन के अलावा इंसान जिसको भी दोस्त बनाता है तो वो दोस्ती सिर्फ दुनिया की हद तक होती है। सिर्फ अल्लाह ताला के लिए की गई दोस्ती हमेशा बाकी रहेगी। हमेशा हमेशा वो जन्नत में भी खुशी देगी उसको। वहां भी दोस्ती जो एक दूसरे से दोस्त मिलकर एंजॉयमेंट कर रहे होंगे। तो अल्लाह ताला की खातिर दोस्ती ईमान का मजबूत कड़ा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान का सबसे मजबूत कड़ा अल्लाह की खातिर मोहब्बत और अल्लाह ताला की खातिर दुश्मनी है। और ये क्यों इतना मजबूत है? क्योंकि अच्छे दोस्त की कंपनी में इंसान का ईमान बढ़ता है, तकवा बढ़ता है, इंसान आगे बढ़ता है, नेकी के रास्ते में और आगे बढ़ता है और ईमान मजबूत होता चला जाता है। आयत देखिए, आयत नंबर है 69। जो हमारी आयतों पर ईमान लाए और थे भी वो फर्माबरदार मुसलमान। आयत 70, तुम और तुम्हारी जोड़ के लोग हशाश बशाश रासी खुशी जन्नत में चले जाओ और उनके चारों तरफ सोने की रकाबियां और सोने के गिलासों का दौर लगा दिया जाएगा। जिस चीज की ख्वाहिश करेंगे, जिससे उनकी आंखें ठंडी रहें, सब वहां होगा और तुम यहाँ हमेशा रहोगे। यानी जन्नत का जिक्र किया जा रहा है। यही वो बहिश्त है कि तुम अपने आमाल के बदले उसके वारिस बनाए गए हो। यहाँ तुम्हारे लिए बाकसरत मेवे होंगे जिन्हें तुम खाते रहोगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, यहाँ पर जन्नतियों का तज़किरा है। जन्नत पे जाने के बाद जो काफिरों के बारे में अल्लाह ने बताया, फरमाया कि जो काफिरों के लिए अल्लाह तबारक तआला क्या कुछ भी मच्छर के पर के बराबर ये दुनिया की कोई वैल्यू होती तो इनके लिए क्या है, इनके बर्तन, सोना चांदी, सब कुछ, इनका घर और हर चीज सोने चांदी की होती। तो काफिरों के लिए दुनिया में जन्नत है, लेकिन ईमान वालों के लिए आखिरत में ये सब कुछ है, सारी लग्जूरियस आखिरत में है। आखिरत में अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि इनके बर्तन, इनकी रकाबियां, इनके गिलास जो मोमिन होंगे उनके सब सामान, सब कुछ सोने और चांदी के और बेहतरीन चीजों का होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का जिक्र करते हुए फरमाया कि जन्नती एक लुकमा उठाएगा और उसके दिल में ख्याल आएगा कि फला का जो किस्म का खाना मैं खा रहा होता काश, तो चुनाचे वो निवाला उसके मुंह में वही चीज बन जाएगा जिसकी उसने ख्वाहिश की होगी। आप सल्लम ने फिर इसी आयत की तिलावत फरमाई। मुस्नद अहमद की एक और हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अदना मर्तबे का जो जन्नती है, जन्नती के बाला खाने की 7 मंजिलें होंगी। ठीक है, जो सबसे कमतर होगा जन्नती, उसके बाला खाने की 7 मंजिलें होंगी। ये छठी मंजिल में होगा और उसके ऊपर 7वीं होगी। उसके 30 खादिम होंगे जो सुबह शाम 300 सोने के बर्तनों में उसके लिए खाना और शराब को पेश करेंगे। हर एक में अलग अलग किस्म का अजीबो गरीब और निहायत लजीज खाना होगा। पहले से आखिर तक उसे खाने की इश्तिहा वैसी ही रहेगी। इसी तरह 300 सोने के प्याले और कटोरे और गिलासों में उसे पीने की चीजें दी जाएंगी। वो भी एक एक से एक सिवा होगी। ये कहेगा कि ए अल्लाह, अगर तू मुझे इजाजत दे तो मैं तमाम जन्नतियों की दावत करूं। सब भी अगर मेरे यहाँ खा जाएं तो भी मेरे खाने में कमी नहीं आ सकती। और उसकी 72 बीवियां हूरे आइन में से होंगी और दुनिया की बीवी भी उस वहां होंगी और उनमें से एक एक मील भर की जगह में वो बैठी होंगी। इतनी बड़ी बड़ी उनको जगहें दी जाएंगी। तो ये अबू दाऊद की हदीस थी। तो ये हमेशा रहने वाली, नियामतों वाली और जन्नतों में होंगे जन्नती। आयत देखिए, आयत नंबर है 74। अब यहाँ से जो जहन्नुमी है उनका तस्करा है। जहन्नुमियों की जो जहन्नुम में जाने के बाद वो मौत का आरजू करेंगे लेकिन उनको मौत नहीं आएगी। आयत देखिए, आयत नंबर 74। बेशक गुनाहगार लोग अजाब दोजख में हमेशा रहेंगे। ये अजाब कभी भी उनसे हल्का नहीं किया जाएगा और वो उसी में मायूस पड़े रहेंगे। आयत 76। और हमने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि ये खुद ही जालिम थे। आयत 77। और पुकार पुकार के कहेंगे ए मालिक, यानी कि ये किसको पुकार रहे होंगे? जहन्नुम का जो दरोगा है उसे कहेंगे ए मालिक, तेरा रब ताला हमारा काम ही तमाम कर दे। तो वो कहेगा कि तुम्हें हमेशा यहीं रहना है, हमेशा तुम्हें रहना है इसी के अंदर। आयत 78। हम तो तुम्हारे पास हक लेकर आए लेकिन तुम में से अक्सर लोग हक से नफरत रखने वाले थे। आयत 79 और 80 देखे। क्या इन्होंने किसी काम का पुख्ता इरादा कर लिया? तो यकीन मानो कि हम भी पुख्ता काम करने वाले हैं। क्या इनका ये ख्याल है कि हम इनकी पोशीदा बातों को और उनके मशवरों को नहीं सुनते हैं? बराबर सुन रहे, बल्कि हमारे भेजे हुए भी इनके पास ही लिख रहे हैं। किरामन कातिबीन की तरफ इशारा है।
تو یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ ہم جو بات چیت کر رہے ہیں کوئی نہیں سن رہا ہے. غیبت، چغلی، بہتان بازی، تمام طرح کا انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو تنہا اکیلا سمجھ کے، لیکن وہ اکیلا تنہا نہیں ہے. جو کچھ وہ عمل کر رہا ہے، جو کچھ وہ فعل کر رہا ہے، اس کے دو جو فرشتے ہیں، اس کے جو نگہبان فرشتے ہیں، اس کے ساری نقل و حرکت لکھی جا رہی ہے. آیت 81 دیکھیں. آیت 81 سے آیت نمبر 89 اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کاملہ اور کفار کی ہٹ دھرمی کا تذکرہ ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 81. کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت گزار ہوتا. آیت 82. آسمان اور زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سے بہت پاک ہے. آیت 83. اب تو انہیں اسی بحث و مباحثے اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سامنا پڑ جائے جس کا یہ وعدہ کیے جاتے ہیں. آیت 84. وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے اور وہ بڑی ہی حکمت والا اور پورے علم والا ہے. آیت 85 دیکھیں. اور وہ بہت ہی برکتوں والا ہے جس کے پاس آسمان اور زمین اور اس کے بیچ اور ان کے بیچ کی بادشاہت ہے. قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے اور اسی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے. آیت 86 دیکھیے. جنہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے. ہاں، مستحق شفاعت وہ ہے جو حق بات کا اقرار کرے اور انہیں علم بھی ہو. آیت 87. اگر تو ان سے پوچھے کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے. پھر یہ کہاں الٹے جاتے ہیں. آیت 88 اور 89 دیکھیں. اور پیغمبر کا اکثر یہ کہنا کہ اے میرے رب یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں، بس تو ان سے منہ پھیر لے اور رخصتاً سلام کہہ دے، انہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا. تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا.